Face to Face with Rashi. Shall we begin? Let's begin now. Ramanand Sagar's Ramayana is a legendary heroic 1987 television series which was aired between 1987 and 1988, and after 33 years this year again in 2020 due to lockdown for COVID-19 pandemic on DD National. It is a television adaptation of the ancient Indian Hindu epic of the same name and is primarily based on Valmiki Ji's Ramayana and Tulsidas Ji's Ramcharit Manas. Starring Arun Govilji, who played iconic character of Lord Sri Ram, and Deepika Chikliya ji, who played Goddess Sita, this Siya Ram ji ki jodi became idols of reverence and faith for every devotee of the respective faith. The re-airing of the series broke several viewership records globally. Mr. Sunil Lahiri as Lakshmanji, late Mr. Sanjay Jog as Bharatji, Mr. Samir Rajda as Shatrugnaji, Mr. Arvind Trivedi as Lankesh, and late Mr. Dara Singh as Hanumanji. They all became synonymous with the original characters in Ramayana for the viewers because of their power-packed performances. Today, on Face to Face with Rashi, we pay our heartfelt tributes to late Shri Sanjay Jog ji. Sanjay Jog was a popular Indian actor who is best known for playing the role of Bharat in Ramanand Sagar's epic television series Ramayana. Sanjay Jog is well known for his work in Marathi cinema. After his schooling in Nagpur, he went to Bombay for further studies and pursued BSc. While he was doing a course in acting from Filmalaya Studio in Mumbai, he got an offer to work in a Marathi film Sapla in 1976. His debut film could not do well, and it made Sanjay so depressed that he returned to his hometown, Nagpur. When he came back to Mumbai for some farming-related work, he got an offer to work in another Marathi film titled Jidda. It was a multi-starrer film with every possible famous name in Marathi cinema in its cast. The film was a big hit at the box office, establishing Sanjay Jog as a skilled actor in the industry. After Jidda, he did about 30 Marathi films and also some Gujarati films including Dikri Chali Sasariya in 1985, in which he played an anti-hero. The film was very successful at the box office. He made his Hindi debut with the film Apna Ghar in 1989. His other Hindi films include Jigarwala in 1991, Hum Shakl and Naseeb Wala in 1992 and Beta Ho To Aisa in 1994. It was Ramanand Sagar's Ramayana in 1987 that made him a household name. His portrayal of Bharat was so intense that people often cried in front of the television set seeing him. Sanjay Jog decided for Bharat's role for the intense sensitive scenes. He used to say, when it comes to duty and sacrifice for a brother, the pair of Ram and Bharat is always remembered. Sanjay Jog gave many hits in his career, including 5 Golden Jubilees and 2 Diamond Jubilee. Sanjay Jog was a handsome religious person. Although he was good in Hindi and English, he was also very well versed in Punjabi and Gujarati. He did Hindi plays, Gujarati plays, English plays and Marathi plays. In his leisure time, he loved to do farming. He never let his stardom to overcome his lifestyle, and he always maintained a down-to-earth persona in his life. In an interview, he had said, "I'm just a normal human being, no supernatural." Sadly, Sanjay Jog left for his heavenly abode at very young age of 40 on November 26, 1995 due to cardiac arrest in Mumbai. But his pleasing persona, captivating charm of his eyes and the intense character play of Bharat will continue to touch our hearts and souls forever. Yes, legends live beyond life.
Hello and a very warm welcome on Face to Face with Rashi or Rajesh Shomi. We are paying our heartfelt tributes to a legend, to a great actor, जो sadly हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन ना होते हुए भी वो हमारे साथ हमेशा रहेंगे, क्योंकि चाहे उनकी पर्सनल लाइफ की बात हो, उनके अपने पर्सनल व्यक्तित्व की बात हो, या फिर उस किरदार की जो उन्होंने रामानंद सागर जी की रामायण में भरत के ख़ास किरदार को इतना बखूबी से निभाया. And you know, his fans, the audience, the people in India, they hold him in such high reverence and esteem. Yes, we are paying our special and heartfelt tributes to late Shri Sanjay Jog ji, the actor. और आज हमें इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि आज फेस टू फेस विद राशि में हमारे साथ हैं रंजीत जोग. Yes, Sanjay Jog's son Ranjit Jog, who himself is an actor. And इस फैमिली के लिए एक चीज़ तो बिल्कुल जो हम कहना चाहते हैं एज अ कॉम्प्लीमेंट, एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने दिया होगा, एंड the beautiful eyes, the charm of the beautiful eyes, the charisma of the beautiful eyes. And yes, it is said that eyes, they are the silent speakers of eloquence. So let's catch up with Ranjit. Hello Ranjit, welcome on Face to Face with Rashi, and it is so wonderful. हमको इतना अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर, you know, and I have no words. I'm feeling so happy to connect with you. So, of course, Dad की बात कर रहे हैं आपके, and we all know, पिता एक वृक्ष की तरह होते हैं हमारे जीवन में. वो हमें जड़ें भी देते हैं, वो हमें छाँव भी देते हैं, वो हमें आत्मनिर्भरता भी सिखाते हैं, और हमें एक ब्रेव लीडर भी ज़िंदगी में बनाते हैं, और वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं. सबसे पहले तो वो यादें, your special memories with your dad. I know there are a number of memories, but something that you would like to share at this point of time, Ranjit. Hi Rashi, thanks for having me on Face to Face with Rashi. As you mentioned, memories about my father. So the first thing when you say Sanjay Jog, भारत ये किरदार आपके मन में सबसे पहले उभर कर आता है, तो उससे रिलेटेड अगर मैं कहूँगा तो किस्से तो बहुत है. एक पर्टिकुलर इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. रामायण के समय की बात है, हम लोग शिरडी गए थे. बाय द वे माय फादर वाज अ फॉलोअर ऑफ साईं बाबा, ही वाज अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर. सो हम लोग फैमिली के साथ शिरडी गए हुए थे, और उस समय वहाँ पे वो साईं बाबा की पादुकाएँ रखी है जिनको छूकर सब प्रणाम करते हैं. तो वहाँ पे एक सीनियर 70-75 ईयर की दो लेडीज़ थी, मेरे दादी जी की उम्र की, और वो आपस में बात कर रही थी कि नहीं ये वही है, ये वही है, भरत है. और उसके बाद वो आए पिताजी के पास और उन्होंने आके पिताजी के पैर छुए. सो इट वॉज अ वेरी ऑकवर्ड पोजिशन फॉर माई फादर. उन्होंने उनको कहा, अरे माँ जी आप ये क्या कर रही है, आप मेरी माँ की उम्र की है. तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बेटा, हमारे लिए तो आप ही भरत है. असली राम लक्ष्मण भरत सीता जी इनको हमने कहाँ देखा है, हमारे लिए तो आप ही उनके चेहरे हैं. सो राशि, दैट वाज बेसिकली द काइंड ऑफ लव दैट पीपल यूज्ड टू गिव टू माय फादर और ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ रामायण. दे यूज्ड टू बिलीव दैट दीज पीपल आर गॉड्स. तो वो एक इतना भक्ति भाव था ना जो एक्सप्लेन नहीं कर सकते. ऐसे बहुत इंसिडेंसेस है अगर फ्रैंकली मैं बताना चाहूँ तो. एंड आई फील माय फादर शुड कैरी दैट वेरी वेल विथ हिज charismatic personality, and there are n number of memories. Very lovely, very heart-touching. And it's true, Ranjit. Like, the characters of Ramayana, they have become, and they are the idols of reverence for the devotees of the respective faith. That is very, very true. All the characters, Bharatji's character, it made an indelible impression on, minds, hearts of people, souls of people. Now, it was very sad, very untimely demise of Sri Sanjay Jog ji, and you were, I believe, 14-15 years, right, when Papa passed away, right? उससे पहले की वो memories, like वो shooting पे जाते थे रामायण की, because he was a big name in Marathi cinema as well, right? So,
and 14, 15 years old child, I think he's grown up and matured enough to listen to the real stories that dad is sharing, right? So कोई ऐसी चीज़ जो आपको याद आ रही हो, वो आपसे शेयर करते थे, how was his experience working on the sets of Ramayana? Because his character portrayal of Bharat Ji on the screen, that was so intense कि सबकी आंखों में आंसू होता था. So any fond कुछ यादें जो पापा रामायण को लेकर आपसे शेयर करते थे? Yes, Rashi, you're right. When my father passed away, I was 15 years old. 10th class में हुआ था मैं तब. तो मैं उनकी शूटिंग्स पे फ्रैंकली बहुत ज़्यादा नहीं गया हूँ. मैं बचपन में उनकी मराठी फिल्म, जैसे कि आपने मेंशन किया कि उन्होंने बहुत मराठी फिल्में की थी, तो कुछ सेट्स पे मैं गया हूँ, तो उनकी कुछ छोटी छोटी मेमोरीज होंगी. बट रामायण का पर्टिकुलर कहेंगे तो मैं ऐसा मेमोरी आपको नहीं बता पाऊँगा. बट आई वुड लाइक टू मेंशन कि रामायण फ्रैंकली एज अ सन व्हेन आई सी इट, आई फील वो एक ही रोल है जो मुझे पिताजी का अच्छा लगा है. बिकॉज आई वॉज वेरी क्रिटिकल अबाउट माई फादर्स परफॉर्मेंसेस. यस एक्चुअली, मतलब उनकी जितनी भी फिल्में थी, मेरी हमेशा कंप्लेंट रहती थी, पापा आपका काम देख के मुझे मज़ा नहीं आता है. बट रामायण समहाउ आई फील he did a fantastic job, and I feel because he was like that, he was a very caring person, he was very attached with his real brothers. उनको 2 भाई है, तो वो जिस तरीके का बॉन्डिंग जो रामायण में आपने जो सीन्स मेंशन किए कि लोगों की आंखों में पानी आ जाता है, तो आई फील वहाँ पे संजय जोग he was himself, so he actually synced and gelled in with that character so much that he actually made you believe that अगर भरत राजा रहे होंगे तो वो ऐसे ही रहे होंगे. सो आई फील ही डिड अ कंप्लीट जस्टिस टू भरत, एंड दैट पर्टिकुलर वन रोल हैज कंप्लीटली चेंज्ड हिज लाइफ, आवर लाइव्स, एवरीथिंग आफ्टर रामायण वाज अ टोटली डिफरेंट सिनेरियो. दिस आई कैन डेफिनेटली से. सो एक्सपीरियंस अगर वो बोले भी नहीं होंगे, लेकिन मैं एक्सपीरियंस ज़रूर करता था. व्हेनेवर वी यूज्ड टू गो टू एनी प्लेस, 10 मिनट के ऊपर हम कहीं जा नहीं पाते थे. फ्रैंकली मैं छोटा था, ये तो चलो जिस समय डैड की डेथ हुई वो तो 95 की बात है, उसके पहले ड्यूरिंग रामायण लेट 80s अगर आप कहेंगे. अब मैं तो छोटा था, मैं जिद करता था कि पापा मुझे जू बीच जाना है. सो ही यूज्ड टू टेक मी एज अ सन. ही वाज वेरी fun loving guy. He never was conscious about his image and stuff. He was a complete jolly father, a very loving father. He used to take me there, but after 10 minutes we had to move from that place क्योंकि पुलिस सिक्योरिटी मंगानी पड़ जाती थी. People used to create a havoc. So it was a very different kind of euphoria. So these are all very fantabulous memories of my father that I have. Beautiful nostalgia, Ranjit. Beautiful nostalgia. Okay, this question is for you. You were an actor, yeah, and doing so well, Ranjit. Some point of time, we would definitely, God willing, we would be chatting, I believe, to our heart's content, and then we'll only be talking about your career. Yeah, but at this point of time, I would just like to know, like, you're an actor. So, how it happened? Yes, Rashi, you're right. I chose to become an actor, but उसकी वजह भी मेरे पिताजी ही है. ये उसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है. ये इंसिडेंट मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा. मैं जब 6th क्लास में था, तो मेरी स्कूलिंग सारी बाय द वे नागपुर से हुई है. तो उस ज़माने में हमारे स्कूल में हॉर्स राइडिंग के क्लासेस शुरू हुए थे, और मैंने उसमें एडमिशन लेके सीख रहा था मैं हॉर्स राइडिंग, और अच्छा चला लेता था मैं, हॉर्स राइडिंग अच्छी करता था. तो हमारे स्कूल के एनुअल डे फंक्शन पे मुझे कहा गया था कि तुम्हें डेमोन्स्ट्रेशन देना है वो हॉर्स राइडिंग का पूरा. मतलब ओके फाइन. और फॉर्चुनेटली उस समय रामायण की शूटिंग नहीं थी और डैड नागपुर में थे. तो मैंने उनको कहा कि आप स्कूल आइए डैड, आइए. मैंने जिद पकड़ ली, तो बोले ठीक मैं आता हूँ. और ही वॉज ऑल्सो वेरी बाय द वे वेरी फैंटास्टिक हॉर्स राइडिंग करते थे वो. तो उन्हें वो ज़्यादा ये था कि मेरा बेटा कैसे हॉर्स राइडिंग करता है मैं देखना चाहूँगा. और उस दिन एक एनुअल डे फंक्शन को एक चीफ गेस्ट आने वाले थे जिनको इन्वाइट किया गया था, और किसी कारण वो थोड़े लेट हो गए स्कूल पहुंचने में, और उसी समय डैड की एंट्री हो गई. तो सारे टीचर्स और प्रिंसिपल ये लोग इतने खुश हुए कि अरे भरत जी स्कूल में है, भरत जी स्कूल में है, और उनको अचानक चीफ गेस्ट की कुर्सी पे बैठा दिया गया. और जो चीफ गेस्ट आने वाले थे वो थोड़ी देर बाद आए, तो उन्हें बताना पड़ा कि सर अभी आप थे चीफ गेस्ट, लेकिन फिलहाल अभी आपको बगल में बैठना पड़ेगा क्योंकि यहाँ संजय जो भरत आए हुए हैं, तो हमने उन्हें गेस्ट ऑफ ऑनर और चीफ गेस्ट बना दिया है. तो वो जो इंसान थे उन्होंने भी वो चीज़ को हंस के बड़े स्पोर्टिंगली लिया था कि अरे भरत जी यहाँ है. तो
क्यों नहीं। और उसके बाद जो वो स्कूल में हैवॉक हुआ था, मेरे सारे दोस्त, सारे फ्रेंड्स, पूरे स्टूडेंट्स, टीचर्स, हर कोई डैड को घेर के वो ऑटोग्राफ चाहिए, तो ये जब उस ज़माने में मोबाइल्स नहीं थे तो फोटोग्राफ और सेल्फी तो थे नहीं, सब कोई ऑटोग्राफ ही लेते थे, कोई हाथ पे ऑटोग्राफ ले रहा है, कोई वो हैंकरचिप पे ऑटोग्राफ ले रहा है। तो ये सब जो मैंने देखा तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पिताजी कुछ अलग है, एक आम आदमी से कुछ तो अलग है। और ये सारे लोग मेरे पिताजी को इतना प्यार करते हैं, तो मैं ऐसा कुछ करना चाहूँगा कि लोग मुझे भी ऐसा प्यार करें। तो ये तो मुझे तब नहीं समझ में आया कि क्यों क्या, पर जैसे मैं बड़ा होता गया तो मुझे समझा कि यस, माय फादर इज़ अ एक्टर, सो वो पब्लिक फिगर होने के कारण वो इतना प्यार है। और तभी शायद फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं भी एक्टर बनना चाहता हूँ। इसके पीछे की यही कहानी है, आई फील सो, कि मैं आज कैमरा के सामने हूँ। Brilliant, brilliant. Ranjit, I believe that the legacy of virtues, it's the most priceless legacy that one can inherit and one can carry forward. So, you being the reflection of your dad, and he was a great human being, right? So, what inspired you? What virtues, what character traits of your dad you would love to carry forward? And thank you so very much for giving your precious time on Face to Face with me. And I wish you all the very best in life, and may all your dreams come true. And I pray to God that at some point of time, yes, we will definitely be connecting, and then we'll have heart-to-heart talk on your career, your life, your emotions, and so many other things. Thank you so much for joining, and this is my last question to you. मैं अपने फादर से क्या इनवाइट करना चाहूँगा, मे बी हिज कॉन्फिडेंस, यस, या ही वॉज एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट। तो उनका एक बोलने का तरीका, लहजा, बोलना चलना, हर चीज़ वॉज वेरी चरिस्मेटिक, वो एक चीज़। और उसके कारण शायद मुझे ऐसा लगता है वो कभी इनसिक्योर नहीं थे। So that one quality I would like to imbibe from my father, and a very kind and giving nature, हमेशा देते रहो। वो हमेशा लोगों की मदद करते थे, फिर वो चाहे दोस्त हो, अनजान व्यक्ति हो, कलीग्स हो, he had that belief that how much you give to the world comes back to you. So वो एक चीज़ मैं फॉलो करने की कोशिश करता हूँ अपने तरफ से, but this one quality I would definitely say, his kindness and his confidence. My dear people, you're on Face to Face with Rashi. और अभी हमने बात की रंजीत जोग जी से, an actor and son of a great legend, late श्री संजय जोग जी। और अब हम कनेक्ट होने जा रहे हैं उनकी वाइफ से, मैम नीता जोग, एंड शी इज़ चीफ लीगल एडवाइज़र, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होल्डिंग कंपनी, MESEBHCL, महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी as well. So let's welcome ma'am. Ma'am, welcome on the show. Thank you so much, ma'am. Namaste. Ma'am, your fond remembrances of sir. Hello, Rashi. Thanks for inviting me on Face to Face with Rashi. आपने मुझे पूछा कि कुछ संजय की फॉन्ड मेमोरीज बताइए। मैं बताना चाहती हूँ कि संजय वॉज वेरी charismatic person. Not only charismatic, he was very impulsive, very sensitive. Actually, he was really a good human being. Very caring, very kind-hearted. इसलिए नहीं कि मैं उनकी बीवी हूँ, पर मैं उनको छोटेपन से जानती थी, यानी 13 साल की उम्र से जानती थी। हम लोग स्कूल में साथ में थे और नेचुरली हमारी लव मैरिज है। इसलिए संजय को इतनी पहले से जानती हूँ तो मुझे सब मालूम था, और उनके इम्पल्सिवनेस को देख के ये भी मालूम था कि ये पक्का एक्टिंग लाइन में ही जाने वाला है, दूसरी तो कोई लाइन ये सिलेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि बेसिकली उनका झुकाव भी थोड़ा उसी तरफ था और उसी हिसाब से वो उसी लाइन में गए। अब सिर्फ ये नहीं, संजय की एक साइड कोई नहीं जानता, वो यानी पब्लिक यानी उनके फैंस नहीं जानते कि वो बहुत अच्छी ड्राइंग निकालते थे, एज वेल एज गुड पेंटर। इतना ही नहीं, एरो मॉडलिंग जो थे वो भी शौक उनको था। वो हॉबी की वजह से उन्होंने उस ज़माने में खुद का एक डेमॉन्स्ट्रेशन प्लेन बना के स्कूल में दिया था,
जिसे टीचर लोग इतने खुश हुए थे, और एक मॉडलिंग एयर मॉडलिंग शो भी उन्होंने खुद अरेंज किया था। सो ये डिफरेंट टाइप की ऐसी उनके पर्सनालिटी के एस्पेक्ट्स थे। अभी इम्पल्सिव का एक छोटा सा किस्सा मैं बताना चाहूँगी कि जब हम डेट कर रहे थे एक दूसरे को, उस वक्त बॉबी फिल्म रिलीज़ हुई थी। उस वक्त संजय ऑलरेडी फिल्म लाइन में जा चुके थे, यानी वो फिल्म लाइन का कोर्स कर रहे थे। फिल्मालय का 2 साल का कोर्स उन्होंने बम्बई से किया हुआ है। तो वो टाइम पे वो बम्बई में थे, मैं नागपुर में थी। सडनली उनके दिमाग में आया कि बॉबी की पहली शो हमको देखना है। उन्होंने वहाँ से प्लेन लिया, नागपुर आए, फर्स्ट डे फर्स्ट शो वहीं से बुकिंग करके, मुझे पता भी नहीं किसने बुकिंग की क्या किया, पर हम लोगों ने फर्स्ट डे फर्स्ट शो बॉबी का देखा और फिर वो बम्बई चले गए। इस तरह से इतने इम्पल्सिव थे कि सिर्फ अपनी दिल के सुनते थे, इन्हें बोलते हैं ना दिमाग से ज़्यादा दिल के सुनना। एंड ही वॉज नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल, नॉट कैलकुलेटिव, ही वॉज वेरी सिंपल पर्सन। जो मन में आए वो करते थे। Very beautiful, very heart touching, and salute to the great soul. Ma'am, Sir's demise was very untimely. It was very unfortunate and sad, true. And you're very young at that point of time. But जैसा आज हम आपको देखते हैं, we see a warrior in you, and warriors are not made overnight. आपके अंदर वो strength, वो वैल्यूर हमेशा रहा होगा, और आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ रही हैं सर के लिए भी, एंड ऑफ कोर्स फॉर योर फैमिली। एंड सो दिस वाज वेरी शॉकिंग व्हेन इट हैपेंड। इसको अल्फाज में नहीं बयां किया जा सकता, लेकिन आज जब हम आपको देखते हैं तो आप एक इंस्पिरेशन है ज़माने के लिए, क्योंकि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज़ द डिग्निटी, द प्राइड। और जिन्हें हम प्यार करते हैं वो कभी हमसे दूर नहीं जाते, वो हमारे अंदर ही रहते हैं। कनेक्शन तो रूहों का होता है। एज अ वॉरियर मैम, हाउ चैलेंजिंग इट वॉज, बिकॉज योर स्टोरी वुड बी एन इंस्पिरेशन फॉर मैनी। राशि, यू कॉल्ड मी अ वॉरियर, स्ट्रॉन्ग वुमन। अब मैं बताऊं, वॉरियर सिचुएशन मेक्स अ मैन वॉरियर और अ वुमन वॉरियर। अब क्या हुआ, मैं लॉयर तो थी, पर मैंने वकालत संजय जाने के पहले ही शुरू की थी। ये हमारे दोनों का मिल के डिसीजन था, क्योंकि क्या है, संजय की जैसी लाइन्स है, जैसे उसमें एक और डबल इनकम रहना ज़रूरी रहता है। सो मैंने चालू किया, पर आई थिंक उसके कुछ सालों बाद ही संजय की डेथ हो गई। सो गॉड हैड सम डिफरेंट प्लान्स प्रॉबेबली, और इसीलिए शायद हम लोगों को ये सूझा कि मैंने वकालत चालू कर लेनी चाहिए। अब वकालत चालू करने के बाद तो मेन थिंग, मुझे बाकी किसी से कंपटीशन नहीं थी, मुझे कंपटीशन करना था संजय जोग एज अ भरत, दैट ऑरा ऑफ भरत। वो इतना बड़ा था कि उसमें से निकल के अपने आप को प्रूव करके खुद को एक एडवोकेट करके पहले इस्टेब्लिश करना वॉज अ डिफिकल्ट थिंग रादर देन कॉम्पिटिंग विद अदर्स। क्योंकि मेरे पिताजी लॉयर होने की वजह से आई वॉज वेल वर्स्ड विद लॉ। सो वो कभी मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाऊँगी या मुझे कुछ उसमें दिक्कत होगी। पर भरत जो एक इतनी बिग इमेज थी, उनकी वाइफ, और वो एक वकालत कर रही है, वो जो एक सोसाइटी का देखने का जो एक बोलते अंदाज था, उससे निकलना थोड़ा डिफ़िकल्ट था। और उससे बाहर मैं ऑफ कोर्स विद टाइम मैंने खुद को प्रूव किया, निकल के, और आज भगवान की कृपा से आई एम डूइंग वेल इन माय प्रोफेशन, यू कैन से। और बच्चों के बारे में, जब रंजीत मेरा बेटा है, उसने जब ये लाइन में जाना चाहा, तो मैंने उसको एक ही बात समझाई कि देखो बेटे, आपको आपके पिताजी के शैडो के नीचे रहना पड़ेगा, क्योंकि वो भरत, ये इमेज, ही इज़ अ लेजेंड, और उनको आपको जब लोग देखेंगे तो हो सकता है कि आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो,
क्योंकि वो जो ग्लोरीफाइड इमेज है भरत की, वो आपको तोड़ के आपकी खुद की इंडिपेंडेंट इमेज बनानी पड़ेगी। तो आप वो दृष्टि से प्रयत्न कीजिए, ना कि नर्वस होके मैं पिताजी की लोगों की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। इससे ज़्यादा अच्छा है कि अपनी खुद की पाँव पे खड़ा होके खुद की इमेज बनाओ, तो ही आप इस लाइन में टिक पाओगे। और आज भगवान की कृपा से ही इज़ डूइंग वेल इन हिज लाइफ, ही इज़ ऑल्सो गुड सेलिब्रिटी। और बेटी भी आज अच्छा कर रही है, वो खुद अच्छी पढ़ी लिखी है, आज यूएस में सेटल्ड है। भगवान की दया से बच्चे भी आज बहुत अच्छे इसमें हैं। Thank you so much, ma'am, for giving your precious time to me, this show. Bharatji's fans, ma'am, on his behalf, your message for his fans. मैं पूरी जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने रामायण और उसके पात्र भरत को इतना प्यार दिया, जिसकी वजह से संजय आज भी हमारे बीच जीवित है। थैंक्स फॉर pouring so much love on us, on Sanjay as well as our family. Thank you so much. Thank you so much for joining. Thank you so much to Ranjit ji. Thank you so much to Neeta ma'am for connecting with us and giving their valuable time to us. Aaj is show mein, we paid our heartfelt tributes to the great legend, late Shri Sanjay Jog ji. Thank you people for joining us.